Hello everyone, today we will study writing formulas of mononuclear coordination entities. Mononuclear coordination entity, that is species enclosed in a square bracket contains a single central metal atom. The chemical formulas of these entities are based on the following guidelines. First, the central metal atom is listed first. Second, the ligands present are written or listed in an alphabetical order without taking into account any charge if present on them. Third, the same sequence is also followed in polydentate ligands in case a particular ligand is abbreviated, example En, oxy, gly, etc. The first letter of the abbreviation is used to determine the position of the ligand in the alphabetical order. Fourth, the formula of the coordination entity including the metal atom and all the ligands present is enclosed in a square bracket. In case some of the ligands are polyatomic, their formulas or abbreviations are enclosed in parentheses. In the coordination sphere or coordination entity, there should be no space between the ligands and the metal atom. In case the coordination entity is mentioned without any counter ion, its charge, if any, is written outside of the square bracket as a right superscript with the number before the sign, example AgNH3 whole twice 2 positive, and second is COEN whole thrice 3 positive, etc. The charge on the cation is always balanced by the charge of the anion. ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. देखिए, आफ्टर राइटिंग फॉर्मूलाज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस गिवन अबव, नेक्स्ट जॉब इज टू नेम दीज. ठीक है, पहले जो IUPAC में ड्राफ्ट गिवन था फॉलोइंग प्रोसीजर था टू नेम द मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड्स, दैट इज कंपाउंड्स विद वन मेटल एटम. मोनोन्यूक्लियर का मतलब है कि एक मेटल एटम या आयन है, ठीक है, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी. फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन द आयनिक कॉम्प्लेक्सेस द ऑर्डर इज नेमिंग कैटायन, species enclosed in coordination entity followed by anion if any. Next is the ligands को arrange करते हैं and named in an alphabetical order before the name of the central metal atom or ion. Third is naming the ligand, the name of ionic neutral cationic ligands written as follows. Anionic ligand है तो anionic ligand end होते हैं with IDE से, are named by replacing IDE with suffix O और replacing E by O. देखिए, एनायन है क्लोराइड, सिंबल है Cl, लिगेंड की तरह हम लिखते हैं क्लोरिडो, ब्रोमाइड को लिखते हैं ब्रोमिडो, साइनाइड को लिखते हैं साइनो, ऑक्साइड को लिखते हैं ऑक्सो, परऑक्साइड को लिखते हैं परऑक्सो, हाइड्राइड को लिखते हैं हाइड्रोक्सो, सल्फाइड को लिखते हैं सल्फाइडो, एमाइड को लिखते हैं अमीडो. ठीक है, आगे देखिए, एमाइड को लिखते हैं इमीडो, नाइट्राइड को नाइट्राइडो, फॉस्फाइड को फॉस्फाइडो. ठीक है, लिगेंड्स हुज नेम एंड इन ITE और ATE बिकम ITO और ATO, दैट इज बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग E विथ O. जैसे एनायन है कार्बोनेट, उसको कार्बोनेटो लिखते हैं, ऑक्सिलेट ऑक्सिलेटो, E को O से रिप्लेस कर देते हैं, सल्फेट सल्फेटो, नाइट्रेट नाइट्रेटो, सल्फाइट सल्फाइटो, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइटो सल्फाइट है ये, थायोसल्फेट S2O3 2 नेगेटिव थायोसल्फेटो, एसीटेट एसीटेटो, थायोसाइनेट बॉन्डेड थ्रू सल्फर थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट को आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्राइट को नाइट्रीटो, नाइट्रो को नाइट्रो ही लिख रहे हैं. ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड अगर है तो देखिए, सर्टेन न्यूट्रल लिगेंड आर नेम्ड एज द मॉलिक्यूल व्हाइल अदर्स आर नेम्ड डिफरेंटली. लिगेंड्स विच आर नेम्ड एज मॉलिक्यूल्स जैसे C5H5N पाइरिडीन है, ठीक है, P C6H5 होल थ्राइस है तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, NH2 H2N CSNH2 तो ये थियोरिया है, NH2 CH2 CH2 NH2 इथेन 1,2 डायमीन EN, ये याद रखिएगा, इथेन 1,2 डायमीन का फॉर्मूला NH2 CH2 CH2 NH2. नेक्स्ट इज लिगेंड्स विच आर नॉट नेम्ड एज मॉलिक्यूल्स. H2O को एक्वा लिखते हैं, NH3 को अमीन लिखते हैं, CS को थायोकार्बोनिल लिखते हैं, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल. Next, organic free radicals when act as ligand are named as usual. Example, CH3 is named as methyl, C2H5 and C6H5 are named as ethyl and phenyl respectively. Positive ligands, the names given to positive ligands and in EM. For example, देखिए NO2 पॉजिटिव है तो नाइट्रोनियम,
NH2NH3 पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम पॉजिटिव लिगेंड है तो EM से वो एंड होता है. NO पॉजिटिव है तो नाइट्रोसोनियम. नेक्स्ट देखिए प्रीफिक्सेस, numerical prefixes to indicate the number of ligand. If there are several ligands of the same type, the prefix like di, tri, tetra, penta, hexa are used to indicate the number of that type. ठीक है. देखिए next. For example, if there are 4 NH3 molecules as ligands, we shall write tetramine. Note that both A and that is a last A of the tetra and first A of amine are to be retained. When the name of polydentate ligands includes a number, example dipyridal or ethylene diamine, then bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis etc. use होते हैं instead of di, tri, tetra, penta, hexa, and the name of this group is placed within brackets without any hyphen. With ligands like methylamine, also the prefixes bis etc. is used because if di is used, it makes dimethylamine, which is a different compound. नेक्स्ट इज एंडिंग ऑफ नेम कैसे होता है. तो देखिए पॉजिटिव एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव नो स्पेशल एंडिंग, बट जो एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं ऑलवेज एंड्स होते हैं इन द सफिक्स ATE, and in these the Latin names of certain metals are commonly used. For example, lead है तो प्लम्बेट, गोल्ड है ऑरेट, जिंक है जिंकेट, टिन है स्टैनेट, आयरन है फेरेट, सिल्वर है अर्जेंटेट, कॉपर है क्यूप्रेट, कोबाल्ट है कोबाल्टेट, platinum platinate. The oxidation state of the central metal atom or ion is generally mentioned at the end of the name with the help of Roman numeral first, second, third or even 0 and closed in bracket. For example, जैसे CuNH3 whole 6Cl3 है तो ये होगा हेक्सा अमीन. हेक्सा अमीन, हेक्सा 6 अमीन है ना, NH3 6 है तो हेक्सा अमीन. कोबाल्ट, कोबाल्ट का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे वो +3 आ रहा होगा. ठीक है, तो इसलिए थर्ड आ गया. और ये है क्लोराइड. ठीक है. कॉम्प्लेक्स इज कैटाइनिक. देखिए FeCO5 है तो पेंटा कार्बोनिल आयरन, ये O0 है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. कॉम्प्लेक्स ये न्यूट्रल है, CO का 0 होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी 0 हो जाएगा. कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल. K3FeCN6. देखिए पोटेशियम हेक्साफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड. पोटेशियम जो बाहर लिखा हुआ है ये पोटेशियम बाहर जो ये सबसे पहले लिख देते हैं. ठीक है, इसके बाद जो ये लिगेंड्स हैं ये कितने हैं 6 हैं तो 6 मतलब हेक्सा और ये है क्या CN तो साइनोफेरेट थर्ड. कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक हेयर. पॉजिटिव ये पहले होता है, पहले वाला पॉजिटिव होता है बाद वाला नेगेटिव होता है, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एनायनिक है. यहाँ पर तो बाहर कुछ है नहीं तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है. यहाँ पर देखिए पहले कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है पहले, तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा. ठीक है, तो इसलिए ये कैटाइनिक है, ये न्यूट्रल है और ये एनायनिक है. द नेम ऑफ द मेटल एटम हैज़ बीन मॉडिफाइड ओनली इन द एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड नॉट इन द कैटाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, आप देखिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन केस ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड्स विद मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स. एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में क्या होता है? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन केस ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड्स विद मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स इज आइदर इंडिकेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट नेम्स फॉर द लिगेंड, एग्जाम्पल thiocinato and isothiocinato, or by replacing the symbol of the donor atom attached after the name of the ligand separated by a hyphen. For example, ये देखिए NH4 whole thrice CrSCN6 है. ठीक है, और यहाँ पर है NH4 whole twice PTNCS, उल्टा कर दिया है ना SCN का NCS6. ठीक है, तो देखिए अमोनियम NH4 को लिखा पहले अमोनियम, थायोसाइनेटो है ये, थायोसाइनेटो SCN थायोसाइनेटो, हेक्साथायोसाइनेटो एस क्रोमेट थर्ड. ठीक है, एस से ही अटैच है ना, यहाँ से एस से शुरू हो रहा है तो एस लगा दिया यहाँ पर बाद में. ठीक है, एन से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर एन. देखिए अमोनियम हेक्सा थायोसाइनेटो एन प्लेटिनेट फोर्थ. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
अमोनियम हेक्साथायोसाइनेटो, अमोनियम हेक्साथायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड, ठीक है, अगर एस नहीं लगा रहे हैं तो। और इसको अमोनियम हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो प्लैटिनेट फोर्थ, एन नहीं लगा रहे हैं तो, ठीक है। ओके, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इफ माई वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।